Okay. Hello, my dear friends. In this video, we are going to discuss basement membrane zone. This is the dermatology lecture number 3. In the previous lecture, we have seen the layers of the skin, that is the physiology, layers of the skin, and basically we have seen in the next video we have seen the epidermis layer. Now, what is the basement membrane that I have explained in the my previous lecture, but for the short I will discuss. Suppose this is the epidermis. Okay, this is the epidermis layer of the skin, and below the epidermis there is dermis. So the junctional zone between the epidermis and the dermis, that is known as the basement membrane zone. What it is known as? That is known as the basement membrane zone. So this basement membrane zone, now in this lecture we will see in detailing the basement membrane zone, what it is, and we will go through the detail. Okay. Before that, we will quickly revise the layers of the epidermis. What are layer of the epidermis are? The very first we have is stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, basilae, and then the basement membrane. Okay. So this is the layers of the skin. The very first epidermis. So epidermis we have the, and here is hypodermis. Okay, hypodermis. The very first is epidermis. Epidermis we have these layers: stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, and stratum basale. Below the stratum basale, there is a junctional zone between the epidermis and the dermis, that is known as the basement membrane zone. Okay, and below the basement membrane we have dermis and then hypodermis. Now we will see in detailing about this zone. This is the basement membrane zone. Okay, so this basement membrane zone, above the basement membrane zone, what it is? Stratum basale, and below it is a dermis layer. We will go to, in this lecture we will only do the basement membrane zone detailing. Okay, so this is the basement membrane zone. This is a very beautiful diagram to explain you. So basement membrane zone, in the layer of epidermis, we have seen the layers of epidermis. In that the stratum basale layer, below the stratum basale there is basement membrane zone, and below the basement membrane zone we have seen there is dermis. Okay, so this is the stratum basale. This is the stratum basale layer of the epidermis, and below that it is the basement membrane. Okay, so this stratum basale, इनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है? डेस्मोजोम से. ठीक है, सो दैट डेस्मोजोम्स जो होते हैं वो दो स्ट्रेटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम करते हैं. सो इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? डेस्मोजोम्स कर रहे हैं. ठीक है. Okay, next we have is hemidesmosome. These are hemidesmosome. Hemidesmosomes क्या कर रहे हैं? Stratum basale layer of epidermis को basement membrane से connect करने का काम कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रैटम बेसिली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? हेमीडेस्मोजोम. और डेस्मोजोम जो है वो दो स्ट्रैटम बेसिली को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं. स्ट्रैटम बेसिली क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है. ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? जंक्शन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस. ठीक है, तो दो डेस्मोजोम्स आर कि वो स्ट्रैटम बेसिली को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, और हेमीडेस्मोजोम्स क्या हुए? स्ट्रैटम बेसिली को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम. अब अगर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है लेयर वो अगेन दो में डिवाइड होती है. ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटम ल्यूसिडम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्ट्रैटम ल्यूसिडम बोलते हैं. सॉरी, लैमिना ल्यूसिडम बोलते हैं. ठीक है, और नीचे जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिना डेंसा. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो लेयर होती हैं, लैमिना ल्यूसिडा
और लैमिना डेंसा। और उसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, डर्मिस देखने को मिलती है। ठीक है, जो डर्मिस होती है वो रिच इन कोलेजन। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। सो वी हैव डेस्मोसोम जो स्ट्रैटम बेसेली को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्ट्रैटम बेसेली में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, दैट इज हेमीडेस्मोसोम्स। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अगेन उसकी दो लेयर्स होती हैं, जिसको दो में हम डिवाइड करते हैं, लैमिना ल्यूसिडा में और लैमिना डेंसा में। और बिलो दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास में क्या मिलेगा, डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन मिलेगा। Okay, so these desmosome, what it will do, they will connect the stratum basally layer. Okay, next we will see the hemidesmosome. ये जो hemidesmosome होते हैं ये stratum basally layer of the epidermis को desmosome से connect करने का काम करते हैं। ये जो hemidesmosomes होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, they are made up of pectin and BPAG1 230. Okay, BPAG1 230. Basement membrane, it is divided into two, that is the laminar lucida layer and laminar densa layer. This laminar lucida layer is made up of laminin, BPAG2 and alpha 6 beta 4 integrin. Okay, so laminar lucida is BPAG2, okay, whereas hemidesmosome is BPAG1 230. Next we have is the lamina densa layer, that is made up of collagen. Okay, so lamina lucida is made of laminin, BPAG2, alpha 6 beta 4 integrin. Lamina densa layer is made up of collagen. अगर बेसिकली क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं ये अफेक्ट होते हैं बुलस पेम्फिगॉइड। हम जब डिसीजेस की डिटेलिंग करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे बुलस पेम्फिगॉइड्स, बट अभी के लिए अगर हेमीडेस्मोसोम आया है तो मैंने थोड़ा सा इसको आइडिया देती हूँ कि बुलस पेम्फिगॉइड्स जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे बुलस पेम्फिगॉइड, वहाँ पे क्या होता है, हेमीडेस्मोसोम अफेक्ट होते हैं। ओके, बेसिकली ये जो बुलस पेम्फिगॉइड है यहाँ पे क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती हैं against the BP180, that is BPAG2. Okay, BPAG2 and BPAG230, AG1 that is 230. ठीक है, BPAG1 230 and BP180 AG2, इसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी। हमें पता है हेमीडेस्मोसोम किससे बने होते हैं, BPAG1 230, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं इन बुलस पेम्फिगॉइड्स। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन इन ऑर्डर ऑफ टॉप टू बॉटम फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप स्ट्रक्चर। ए डेस्मोग्लिन, बी हेमीडेस्मोसोम, C कोलाजन 7 एंड D इज़ लैमिनिन। ये जो डेस्मोग्लिन है, बेसिकली डेस्मोसोम जो होते हैं दे आर मेड ऑफ डेस्मोग्लिन। ओके, अब बताइए, सुपरफिशियल टू डीप अरेंज करना है इसको, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेस्मोग्लिन, क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले क्या होते हैं, स्ट्रैटम बेसेली को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, डेस्मोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डेस्मोग्लिन आएगा। उसके बाद में हेमीडेस्मोसोम आएगा जो स्ट्रैटम बेसेली लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो पहले डेस्मोग्लिन, नेक्स्ट हेमीडेस्मोसोम, उसके बाद आएगा कोलाजन 7, नहीं उसके बाद आएगा लैमिनिन, देन कोलाजन 7। ये जो कोलाजन 7 है अभी हम इसमें डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, कोलाजन 7 जो होता है, ओके, तो 1 देन 2 देन 4 देन 3। ठीक है, कोलाजन का डर्मिस बना होता है और कोलाजन का लैमिना ल्यूसिडा लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, लैमिनिन ना। सो लैमिनिन हमारे पास में कौन से नंबर पे आ जाएगा, 4th नंबर पे आ जाएगा, और लैमिनिन 3rd नंबर पे आएगा, कोलाजन 4th नंबर पे। ठीक है, हाँ
Okay, so A, then B, then D, then C. Thank you. The next lecture we will see the desmosome detailing.